हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आईडी में। ये हमारे कोर्स का पार्ट है इसी नवंबर दिसंबर बोर्ड एग्जामिनेशन का। बेटा चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 4। बाबू पेज नंबर 60 है एनसीईआरटी में, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन। बाबू इंट्रो नहीं पढ़ रहा मैं। नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 हु आर द पुअर। चलो जी बेटा इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन पुअर होता है। ठीक है जी, चैप्टर का नाम पॉवर्टी है तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए वैसे तो पॉवर्टी क्या चीज़ है। ठीक है जी, ये कह रहा है हु आर पुअर। चलो पढ़ के देखते हैं बेटा, फिर मैं बताऊंगा। कहता है यू वुड हैव नोटिस्ड दैट इन ऑल लोकेलिटीज एंड नेबरहुड्स both in the rural and the urban areas, there are some of us who are poor and some who are rich. Read the story of Anu and Sudha. Their lives are the example of two extremes. बेटा ये 4.1 बॉक्स में दी गई है, पेज नंबर 61 पे। अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में देखेंगे। There are also people who belong to many stages in between. Pushcart vendors, street cobblers, women who string flowers, rag pickers, vendors, beggars are some of the example of poor and vulnerable group in the urban areas. The poor people possess few assets and reside in kacha hutmen with walls made of baked mud and roof made of grass and yards, bamboo and wood. And the poorest of them do not even such dwellings. In rural area, many of them are landless. Even if some of them possess land, इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। बाबू तो बता रहे हैं कि कौन कौन पुअर होता है, कुछ उसने एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है ना, किसी के पास घर भी होता है, किसी के पास वो भी नहीं होता। घर होता है तो बेटा वही, ठीक है ना, मड का बना हुआ, ग्रास है फ्लोर पर, यही सब कुछ। कहता है मैनी डू नॉट गेट टू हैव इवन 2 meals a day. Starvation and the hunger are the key feature of the poorest household. The poor lack basic literacy and skill and hence have very limited economic opportunities. Poor people also face unstable employment. Malnutrition is alarming high among the poor. Ill health, disability or serious illness makes them physically weak. They borrow from money lender who charge high rate of interest that lead them into chronic indebtedness. The poor are highly vulnerable. They are not able to negotiate their legal wages from the employers and are exploited. Most poor households have no access to electricity. Their primary cooking fuel is firewood and cow dung cake. A large section of poor people do not have access to safe drinking water. There is evidence of extreme gender inequality in a participation of gainful employment, education and in decision making within the family. Poor women receive less care on their way to motherhood. Their children are less likely to survive or to be born healthy. Economists identify the poor on the basis of their occupation and ownership of asset. यहाँ से काम की बात शुरू होगी बेटा। अभी तक तो इसने वो बातें बताई हैं जो बिल्कुल जनरल हैं। ठीक है जी, कहता है बेटा इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ एसेट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बताया बेटा, वो इंसान के ऑक्यूपेशन पे बता देते हैं कि इस ऑक्यूपेशन में तो पक्का पुअर होगा, ये एसेट है या ये नहीं है तो पक्का पुअर होगा। कहता है दे स्टेट दैट रूरल पुअर वर्क मेनली एज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, कल्टीवेटर विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग or landless laborer who are engaged in a variety of non-agriculture job and tenant cultivator with small land holdings. बेटा देखो, कहता है रूरल एरिया में मेनली वो लोग बेटा पुअर माने जाते हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, लैंडलेस लेबरर हैं बेटा, सिर्फ कल्टीवेटर है। और कुछ लोग हैं बेटा जिनके पास छोटी सी लैंड है, वो भी पुअर। आगे बढ़ना बेटा, कहता है द अर्बन पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर who had migrated to the urban area in a search of alternative employment and the livelihood. Laborer who do not do a variety of casual job and the self-employed who sell a variety of things on the roadside are engaged in various activities. कहता है अर्बन एरिया में कौन पुअर है?
कहता वही रूरल लोग बेटा जो माइग्रेट कर देते हैं अर्बन एरियाज की तरफ कि हमें एग्रीकल्चर में काम नहीं करना, हम तो अर्बन एरियाज में आकर फैक्ट्रीज में काम करेंगे, फार्म्स में काम करेंगे। भाई अर्बन एरिया में भी कौन सी इतनी अरबों फैक्ट्री लग गई है कि सबको बेटा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट दे दे, तो सबको तो मिल नहीं पाती। आप क्या होते हो बेटा, अपने गांव में तो बेटा अनएम्प्लॉयड थे ही थे, इन सर्च ऑफ अ जॉब अर्बन एरियाज में आ गए और बेटा यहाँ भी काम नहीं मिला, यहाँ पर भी आप क्या हो बेटा, अनएम्प्लॉयड ही हो। ठीक है ना बेटा, और यहाँ पर भी आपकी कैटेगरी पुअर की है। ठीक है ना। कहता है अगर आके आप छोटा मोटा काम धंधा शुरू भी कर देते हो, किसी रोड साइड पे कुछ बेच रहे हो, कहीं स्टेशन के पास कुछ बेच रहे हो, इससे कोई ऐसा कुछ हाथ नहीं लग जाता कि आपकी पॉवर्टी कम हो जाती है। पुअर अभी भी पुअर ही है। चलो जी खैर बाबू, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, ये बहुत काम का टॉपिक है बेटा, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। 1 मार्क क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लिख लो बेटा इस पैराग्राफ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं मोबाइल के ऊपर लिख लो। इफ इंडिया इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, it has to find viable and the sustainable strategies to address the cause of poverty and design schemes to help the poor out of their situation। बेटा कहता है अगर इंडिया को पॉवर्टी की प्रॉब्लम खत्म करनी है ना, सबसे पहले पॉवर्टी के कारण जानो बेटा कि पुअर है कौन और पॉवर्टी के कारण क्या है। जब ये पता होगा पुअर कौन है तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। बेटा कहता है हाउ एवर फॉर दीज स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट नीड टू एबल टू आइडेंटिफाई हु द पुअर आर। For this, there is need to develop a scale to measure poverty and the factor that make up the criteria for this measurement or mechanism need to be carefully chosen। बेटा कहता है अगर सरकार को कोई भी स्टेप लेना है पॉवर्टी खत्म करने का तो सबसे पहले पता होना चाहिए पुअर कौन है, और पुअर के लिए बेटा आपको कोई ना कोई मेजरमेंट स्केल डिफाइन करना है और बेटा देखना है कि वो मेजरमेंट स्केल बेटा केयरफुली लगता रहे, अप्लाई होता रहे। ठीक है जी। वैसे अभी आपको इस पैराग्राफ में पता लग जाएगा, मैं अभी भी बता सकता हूँ बेटा पुअर कौन है, आप पढ़ लो एक बार, आप बताना पुअर कौन है, लिखा हुआ है आगे आने वाले पैराग्राफ में, लिखा हुआ है पुअर कौन है सरकार की नज़र में। कहता है इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नरोजी हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। 1 मार्क क्वेश्चन, इंडिया में सबसे पहले किसने पॉवर्टी लाइन डिस्कस की थी? दादा भाई नौरोजी ने। वैसे भी आपको पता है पॉवर्टी लाइन क्या होती है? क्या होती है? मैं एक्सप्लेन पॉवर्टी लाइन, मुझे ये मत बताना ये ऊपर ये नीचे ना जी। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? रिच और पुअर, अ वेरी रॉन्ग वर्ड। चलो खैर अभी देखेंगे, और मैं तेरी गलती नहीं अर्जुन, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं इसको, टीचर्स भी। अभी बताऊंगा इस बात का मतलब। हाँ कुछ कह रही है पूर्वा, बता। वो तो होता है, उससे बिलो होता है तो पुअर। हाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे पुअर। पॉवर्टी लाइन क्या है यही तो पूछ रहा हूँ। पॉवर्टी लाइन से नीचे पुअर सबको पता है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर क्या है वो भी बाद में बताऊंगा कि क्या है। इससे तो रिच बोला। चलो खैर चलो कोई नहीं, अभी पढ़ते चलो। कहता है ही यूज द, बेटा दादा भाई नरोजी की बात चल रही है, पढ़ते चलो। ही यूज द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर and used appropriate prevailing price to arrive at may be called jail cost of living. However, only adults stay in jail, whereas in actual society there are children too. He therefore appropriately adjusted this cost of living to arrive the poverty line. अभी पढ़ते चलना, बड़े बड़ा काम की बात बोली हुई है इसने। कहता है for this adjustment he assumed that 1/3 of the population consisted of children and half of them consumed very little, whereas the other half consumed half of the adult's diet. This is how he arrived at the factor of 3/4. The weighted average of the consumption of 3 segments gives the average poverty line, which comes out to be 3/4 of the adult jail cost of living. मैं पहले ये बता देता हूँ क्या है ये। बेटा दादा भाई नरोजी पहले इंसान थे इंडिया में जिन्होंने बेटा क्या करा, पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट डिस्कस करा।
और इन्होंने बताया कि इनके लिए पुअर है कौन। ठीक है, मैं बता देता हूं इनके लिए कौन पुअर है बेटा, और कौन रिच नहीं बोलते, बोलते हैं बेटा नॉन पुअर। आगे जाकर आप पढ़ोगे, मैं आपको बता देता हूं बेटा, पॉवर्टी लाइन पढ़ोगे। पॉवर्टी लाइन क्या होती है बेटा? पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट। पॉवर्टी लाइन बेटा कट ऑफ पॉइंट है बेटा, जो देश की पॉपुलेशन को डिवाइड करती है इनटू पुअर्स एंड नॉन पुअर। डोंट यूज द वर्ड रिच। मैं अभी कारण बता देता हूं क्यों मैं मना कर रहा हूं, अभी आएगा, खैर मैं बोल देता हूं। अगर आप बेटा अर्बन एरिया में रह रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप, मतलब मैं डेफिनेशन सोचता हूं क्या डेफिनेशन दी और किसने दी और क्या सोच के दी, और अगर आप 1000 पर मंथ कमा रहे हो तो बेटा आप पुअर नहीं हो, और अगर 999 कमा रहे हो तो पुअर हो। यानी कि रोज के 30 रुपए कमाने वाला इंसान हमारे देश में पुअर नहीं है, ये तो डेफिनेशन है। और बेटा 816 रुपए पर मंथ अगर कमा रहे हो इन द रूरल एरियाज तो भी बेटा आप पुअर नहीं हो, इससे नीचे कमा रहे हो तो पुअर हो। बेटा पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज द कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पुअर्स एंड नॉन पुअर्स। इसके नीचे आए तो बेटा पुअर, इसके ऊपर आए रिच मत बोलना बेटा। मैं कहूं एक इंसान 1001 रुपए कमाता है तो आप तो कह दो कि रिच है। आपका क्या है टर्म, क्या है बेटा? एप्रोप्रिएट टर्म और नॉन पुअर, ठीक है ना। इंसान रिच तो नहीं हो सकता ना 1001 महीने के कमाने वाला, ठीक है ना। और मैं बोलता हूं बेटा अभी इतनी रिलैक्स्ड डेफिनेशन है, अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट दे देते तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। अभी बता देता हूं, इस डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया में पता है कितने पुअर है? लगभग 21.8%। 135 करोड़ का 20% यानी कि 27 करोड़, यानी कि लगभग 28 से 29 करोड़ लोग पुअर हैं, जो इतना भी नहीं कमाते। 28 से 29 करोड़ इंडियंस। और आपको बता देता हूं इंडिया में जितने पुअर है ना, पूरे वर्ल्ड का 50% पुअर इंडिया में रिसाइड करता है। पूरे वर्ल्ड में अगर 56 करोड़ पुअर हैं, 28 करोड़ अकेले इंडिया में। वर्स्ट है हालात, वर्स्ट। चलो खैर, इस पर तो मैं डिस्कशन और करूंगा, लिखवाऊंगा अभी ये तो सारे स्टैट्स आपको, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है ये चीजें। बेटा दादा भाई नरोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई, ये कंसेप्ट दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेटा उसने क्या करा, जेल में जो कैदियों को मेन्यू दिया जाता था खाने के लिए ना, उसको डिटरमाइन करा ये क्या क्या खिलाते हैं, ठीक है। और ये देखा बेटा कि इनकी एक एवरेज कॉस्ट कितनी है, ठीक है। और उसने इसी हिसाब से बेटा एक पॉवर्टी लाइन बना दी। बेटा अभी समझाता हूं क्या मतलब था उनका। उन्होंने कहा देखो जेल में उस टाइम पर ना सिर्फ अडल्ट रहते थे बेटा, ठीक है ना, बड़े लोग, क्राइम इतना नहीं होता था बेटा, ठीक है ना। और बच्चे तो क्राइम बिल्कुल नहीं किया करते थे, वो तुम्हारी तरह थोड़ी थे बेटा, ठीक है ना। तो बाबू उस टाइम पर क्राइम बिल्कुल नहीं था, ठीक है। लेकिन बेटा एक्चुअल सोसाइटी में, जेल में तो नहीं रहते थे, जेल में तो सिर्फ अडल्ट रहते थे, लेकिन एक्चुअल सोसाइटी में क्या रहते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा समझना जरा, उन्होंने बोला मान लो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 1/3 चिल्ड्रन है, यानी कि बेटा 2/3 अडल्ट है। अगर 1/3 चिल्ड्रन है बेटा पूरे इंडिया में, तो बेटा 2/3 अडल्ट है बेटा। बाबू उन्होंने माना कि इनमें से बहुत छोटे बच्चे भी हैं, इन चिल्ड्रन में से बहुत छोटे बच्चे भी हैं, इन्फेंट भी है, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक के बच्चे। कहता है इनमें से आधे तो छोटे बच्चे हैं जिनकी डाइट पे कोई पैसा खर्च नहीं होता, 0 रुपए, 0 रुपए, ठीक है ना। कहता है आधे वो हैं जो बेटा अडल्ट की डाइट का आधा डाइट लेते हैं। मान लो बेटा अडल्ट की डाइट 1 रुपए की आती है, तो बेटा इनकी डाइट आधी आ जाएगी बेटा। अगर इनकी डाइट को एज्यूम कर लो 1, इनकी अडल्ट की डाइट को एज्यूम कर लो 1, तो बेटा जो आधे बचे हुए बच्चे उनकी डाइट क्या होगी, हाफ है बेटा। उसने माना कि बेटा अडल्ट की डाइट का हाफ ही खा सकते हैं बच्चे, ठीक है ना बेटा। और इनकी डाइट कितनी है, इनकी डाइट है बेटा 1, ठीक है बाबू। ये क्या बना 0, ये बना 1, सॉरी ये ऐसे होना था बेटा बाबू, मैंने गड़बड़ कर दी, ऐसे होना था, ठीक है ना। 1/3 टोटल चिल्ड्रन है,
उनमें से बेटा आधे इन्फेंट है, 1/3 का आधा इन्फेंट है, और इन्फेंट की बेटा कंजम्पशन 0 है, ठीक है ना। 1/3 चिल्ड्रन के आधे बेटा इन्फेंट नहीं है, जो बेटा रियलिटी में चाइल्ड है और कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं बेटा, लेकिन ये अडल्ट का हाफ कंज्यूम करते हैं। तो बेटा ये क्या बना 1/12 और ये बना बेटा 2/3। तो बेटा अगर एलसीएम ले हम, ये आया 9/12 विच इज इक्वल टू 3/4। बेटा उसने बोला क्योंकि जेल में सारे अडल्ट रहते थे, अगर उनकी डाइट पर 1 रुपया स्पेंड होता था, सारे अडल्ट रहते थे, सारे अडल्ट की डाइट कितनी है 1 के इक्वल मानी, अगर उनकी डाइट पे 1 रुपया स्पेंड हो रहा है, अगर बेटा सोसाइटी एवरेजली 75 पैसा भी नहीं कमा रही, क्योंकि सोसाइटी का एवरेज खर्चा कितना है 3/4 आया, यानी कि 75 पैसा, अगर सोसाइटी ये भी नहीं कमा रही तो आप पुअर, ऐसा कुछ उसने सजेस्ट करा। और आप देखना बेटा कंसेप्ट ऑफ 3/4 लिखा था ना, मैंने रीड नहीं करा, एक बार करना, अब शायद क्लैरिटी भी आ जाए आपको क्या कहने का मतलब है, रीड करके बताना। रिपीट करता हूं एक बार दोबारा समझना, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी। बेटा उन्होंने पॉवर्टी को समझाने के लिए क्या करा बेटा, स्टैट्स बहुत कम होते थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या करा बेटा, कैदियों को दिए जाने वाला खाना देखा और बेटा प्रिवेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करा कि आप कैदियों को कितने रुपए का खाना दिखा देते हो। एवरेजली उन्होंने माना कि 1 रुपए का अगर एक इंसान खाना खा रहा है, ठीक है ना, तो बेटा सोसाइटी को कब आप पुअर बोल सकते हो। उन्होंने देखा कि बेटा इंडियन सोसाइटी में 1/3 चिल्ड्रन है और बेटा 2/3 अडल्ट है, 1/3 में से बेटा आधे बच्चे, 1/3 का आधा बेटा बिल्कुल इन्फेंट है, जिनकी एज कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक है, जिनकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती बेटा खाने की, तो बेटा इनकी कॉस्ट तो खाने की 0। बेटा बचे हुए आधे बच्चे अडल्ट का आधा ही खा पाते हैं, अगर अडल्ट 1 रुपए का खा रहा है तो ये 1/2 का ही खा रहे हैं बेटा, आधा ही खा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, और अडल्ट बेटा 2/3 1 रुपए का एवरेजली खा रहे हैं। तो बेटा जब मैंने इन सबको सम किया तो ये आया 3/4 यानी कि 75 पैसे। अगर बेटा सोसाइटी एवरेजली 75 पैसे का नहीं खा पा रही तो बेटा पुअर। समझ में आया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी, ठीक है ना, पेपर में पूछा जा सकता है बेटा, किसी जगह पर नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में, तो बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, ये समझ में आया प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले पॉवर्टी लाइन एक ही बंदे ने डिस्कस की थी। आगे बढ़ना बेटा, कहता है इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। लेकिन बेटा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत सारी अथॉरिटीज बनी बेटा, जिन्होंने अलग अलग टाइम पर पुअर बताया कि कितनी कितनी क्वांटिटी हो चुकी है। बेटा कहता है फॉर इंस्टेंस इन 1962 प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप, अंडरलाइन द वर्ड। इन 1962 में जिम्मेदारी किसको दी गई, प्लानिंग कमीशन को दी गई, आज की तारीख में इसका नाम नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन ने बेटा एक स्टडी ग्रुप बनाया जिसका काम था बेटा पुअर आइडेंटिफाई करना। इन 1979 अनदर बॉडी कॉल्ड द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वर फॉर्म्ड। 1979 में बेटा टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई। इन 1989 एंड 2005 एक्सपर्ट ग्रुप वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। और ये बेटा नाम लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। Besides the planning commission, many individual economists have also attempted to develop such a mechanism. बेटा कह रहा है प्लानिंग कमीशन के साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे बताया पॉवर्टी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और कौन पुअर है उनके लिए। For the purpose of defining poverty, we divide people into 2 categories, the poor and the non-poor, and the poverty line separates the two. However, there are many kind of poor, the absolutely poor, the very poor, the poor. Similarly, there are various kind of non-poor, the middle class, the upper middle class, the rich, the very rich, and the absolutely rich. ठीक है ना, पढ़ते चलो। Think of this as a line or a continuum from very poor to the absolute rich, with the poverty line dividing the poor from the non-poor. बेटा ये ना पेज नंबर 63 पर इन्होंने बनाकर दिया है। पेज नंबर 63 पे सबसे नीचे देखना, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, वेरी रिच, मिलेनियर, बिलेनियर। ठीक है बेटा,
खैर छोड़ दो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, इन्होंने तो बहुत सारी कैटेगरी बना दी, हमें बनानी नहीं बाबू। लेकिन जो नीचे टेबल दी गई है ना पेज नंबर 64 पर, चार्ट नंबर 4.2, द क्रॉनिक पुअर, ट्रांसिएंट पुअर एंड नॉन पुअर, ये बहुत काम की चीज़ है और इनके डायग्राम भी बहुत काम की चीज़ है बेटा। चलो खैर, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी पढ़ते हैं बेटा एक बार, क्या कैटेगराइज करता है। कहता है देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी in one such way people who are always poor and those who are usually poor but may sometimes have a little more money, for example casual worker, are grouped together as chronic poor. Another group are the churning poor who regularly move in or out of the poverty, for example small farmer and the seasonal worker. And the occasionally poor who are the rich most of the time but may sometimes have a patch of bad luck, they are called the transient poor. And then there are those who are never poor and they are called the non poor. लो बेटा मैं समझाता हूँ इनके बारे में क्या है ये, आप सब सामने देखना मेरी तरफ बेटा, ये समझ में आ जाएगा आपको। बेटा मैंने एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो बेटा ये 1000 रुपये का स्केल है, आप अर्बन एरिया में हो, 1000 से नीचे कमाए तो आप पुअर और बेटा इससे ऊपर कमाए तो आप बेटा नॉन पुअर। ठीक है जी बेटा, पुअर की बहुत सारी कैटेगरी इन्होंने बनाई। सबसे पहली कैटेगरी है बेटा ऑलवेज पुअर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ऑलवेज पुअर का डायग्राम कुछ ऐसा सा है, कभी पहुंचे ही नहीं बेटा 1000 तक, कभी नहीं पहुंचे बेटा। सेकंड कैटेगरी इज ओकेजनली पुअर बेटा, हैं जी, अरे सॉरी यूजुअली पुअर बेटा। सेकंड कैटेगरी इज यूजुअली पुअर, नाम बोल रहा है यूजुअली पुअर, मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर रहेंगे बेटा, बस कभी पॉवर्टी लाइन से बाहर आए होंगे अपनी जिंदगी में। ठीक है ना बेटा, जैसे कि कैजुअल वर्कर, दिहाड़ी पे लेबर काम करती है बेटा, 2 दिन दिहाड़ी मिल गई, 4 दिन करनी नहीं आ तो, या 4 दिन मिली नहीं। बहुत कम बार ऐसा होगा बेटा अगर रेगुलर दिहाड़ी मिल गई 7, 8, 15 दिन की तो बाहर आ जाएंगे, वरना बेटा उसी कैटेगरी में पड़े रहेंगे। समझ आई बात बेटा, ये क्या है यूजुअली पुअर है, एग्जांपल इज कैजुअल लेबर। ठीक है बेटा। देन थर्ड कैटेगरी क्या है बेटा, चर्निंग पुअर बेटा। चर्निंग पुअर है हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। रेगुलरली बेटा या तो पॉवर्टी लाइन में आते रहते हैं बेटा, पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजनल वर्कर, मान लो आप कोई चीज सीजन की प्रोड्यूस करते हो बेटा, सीजन के टाइम पर आप नॉन पुअर हो, लेकिन जैसे ही ऑफ सीजन हुआ बेटा दोबारा पुअर हो गए। ठीक है ना, फिर सीजन का टाइम आया फिर नॉन पुअर हो बेटा, और फिर दोबारा पुअर हो गए। या बेटा आप बोल सकते हो कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट, बेटा आप एक क्रॉप उगाते हो, 6 महीने का सीजन है, 6 महीने के लिए तो बेटा नहीं रहोगे पुअर, बाकी बचे हुए 6 महीने ऑफ सीजन दूसरी क्रॉप आप उगाते नहीं थे बेटा, क्या लगते थे, खाली बैठे रहते थे बेटा, पुअर बने रहते थे। तो ऐसी कैटेगरी है बेटा चर्निंग पुअर की, हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना, थोड़े थोड़े टाइम पुअर रहेंगे, थोड़े थोड़े टाइम नॉन पुअर रहेंगे बेटा। देन बेटा ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर क्या होता है बेटा, गलती से पुअर हो गए थे कुछ टाइम के लिए, हमेशा बेटा नॉन पुअर है, लेकिन कई बार दे आर सफर्ड फ्रॉम अ पैच ऑफ बैड लक। ठीक है ना बेटा, सफर्ड फ्रॉम अ पैच ऑफ बैड लक का मतलब क्या है बेटा, फार्म में आग लग गई, सारी फसल जल गई। ठीक है ना बेटा, या बेटा फैक्ट्री जल के तबाह हो गई। वैसे हमेशा रिच रहे हो बेटा, लेकिन कई बार बैड लक हुआ जिसकी वजह से आप पुअर बन गए थे। ठीक है ना, ओकेजनली किसी एक ओकेजन ने पुअर बना दिया, वैसे थे नहीं बेटा। और बाबू बाकी क्या कैटेगरी है, नेवर पुअर बेटा, नेवर पुअर तो बस ठीक है, कभी आए नहीं पॉवर्टी लाइन के अंडर। ठीक है जी। और अगर आप देखोगे बेटा इन दोनों को ये बोल रहे हैं बेटा क्रॉनिक पुअर, देखो ऐसा ही बोल रहे हैं ना बेटा, इन दोनों को ये बोल रहे हैं ट्रांसिएंट पुअर, और बेटा इन दोनों को मिलाकर ये बोल रहे हैं नॉन पुअर।
एक बात ध्यान रख लेना बेटा, आपसे पेपर में इन तीनों के बारे में भी पूछ सकता है, इनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। क्रॉनिक पुअर क्या होते हैं बेटा, ये कॉम्बिनेशन है ऑलवेज पुअर का और यूजुअली पुअर का, बस इतना ही लिखना है आपको, और ऐसे ही एनसीईआरटी ने लिखा है। ट्रांजिएंट पुअर क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर इज नोन एज ट्रांजिएंट पुअर। बेटा नॉन पुअर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओकेजनली पुअर एंड नेवर पुअर इज नोन एज नॉन पुअर्स। समझ आई बात, इनकी कोई अलग डेफिनेशन है नहीं बेटा इन तीनों की, ठीक है जी, समझ में आया। अभी फिर पढ़ेंगे बेटा आगे, अभी पहले पढ़ते चलेंगे, अभी मेरे को सब लिखवाना है, ये भी लिखवाना है। बेटा इसको भी ये नॉन पुअर ही बोल रहा है। अगर आपने पूरी जिंदगी कमाया है और गलती से एक बार नीचे आके दोबारा उठ गए हो तो बेटा वो कह रहा है कोई पुअर नहीं हुआ। नहीं बेटा दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है? नहीं नहीं, दोनों में ही है भाई। अगर आप टुगेदर विद भी पढ़ोगे तब भी दोनों में ही कहा हुआ है, दोनों में ही कहा हुआ है, टुगेदर विद में भी कहा हुआ है। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। द पॉवर्टी लाइन, बस मुझे एक पैराग्राफ इसमें पढ़ना है और आपको बस बहुत क्लैरिटी आ जाएगी पॉवर्टी लाइन क्या चीज है। नाउ लेट अस एग्जामिन हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। देयर आर मेनी वेज ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। One way is to determine it by the monetary value of the minimum calorie intake that was estimated at 2400 calorie for a rural person or 2100 calorie for a person in the urban areas. Based on this, in 2011-12, the poverty line was determined for a rural area as consumption worth 816 per person a month. एंड फॉर अर्बन एरियाज इट वाज 1000। प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, पॉवर्टी लाइन को इन्होंने कैसे मेजर करा। इन्होंने कहा अगर कोई इंसान रूरल एरिया में रहता है, क्योंकि रूरल एरिया के लोग बहुत लेबर करते हैं बेटा, उनको हमारे से ज़्यादा कैलोरी चाहिए। कहता है अगर वो 2400 कैलोरी खरीद सकता है अपने लिए दिन की तो बेटा पुअर नहीं। और बेटा अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को एवरेजली 2100 कैलोरी चाहिए, अगर वो अपने लिए 2100 कैलोरी खरीद सकता है बेटा तो वो भी पुअर नहीं है। उन्होंने अंदाजा लगाया बेटा रूरल एरिया में महीने की रेगुलर 2400 कैलोरी खरीदने का एवरेज खर्चा 816 रुपये। रूरल एरिया में चीज़ें सस्ती बिक जाती हैं, अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा काटते हैं बेटा, तो अर्बन एरिया में खर्चा 2100 कैलोरी पर मंथ खरीदने का, पूरे रेगुलरली एक महीने तक खरीदने का खर्चा लगभग 1000 रुपये। तो इन्हें दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। अगर आपका वो कैलोरी के बेसिस पे पुअर नॉन पुअर बताने हैं तो बेटा रूरल एरिया में अगर आप 2400 कैलोरी नहीं ले रहे रोज की तो आप बेटा पुअर हो, अदरवाइज नॉन पुअर। अर्बन एरिया में अगर 2100 कैलोरी रोज की नहीं ले पा रहे हो आप बेटा तो क्या हो, आप पुअर हो, अदरवाइज नॉन पुअर। ऐसे ही बेटा पैसों में भी बता सकते हो, 816 और 1000 रुपये मैंने भी बताया था अभी। आप समझ में आई बात, बस इतना ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना ना, इससे आगे पढ़ना। चलो जी बेटा, अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें होगी, पॉवर्टी क्या चीज़ है। मैंने तो पहले ये कहा था कि चैप्टर शुरू होने से पहले तो ये बताना चाहिए पॉवर्टी क्या चीज़, बताई नहीं अब तक। क्या है पॉवर्टी चीज, क्या है मेरे को एक्सप्लेन करो। क्या हूँ क्या, हैंड रेस करो, बताओ क्या गीदड़ों की तरह ग्रुप में शिकार करते रहते हो। पॉवर्टी क्या चीज है, गरीबी पागलों वाली बात कर रहा, पेपर में लिख देगा गरीबी, सबको पता है यहाँ पर। हाँ तो एमसीक्यू में हिंदी में ऑप्शन आएगा गरीबी, हाँ तो ऑप्शन आएगा तब आएगा देखेंगे। चलो जी, अरे कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात यार, ठीक है ना। पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। बेटा एक इंसान अगर अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर पा रहा, जस्ट लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, तो आप बेटा पुअर हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इंडिया में कैसे पॉवर्टी मेजर होती है, इंडिया कैसे करता है पॉवर्टी मेजर, पॉवर्टी लाइन से मेजर करता है बेटा। आपको बता देता हूं बेटा, पॉवर्टी मेजर करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप पॉवर्टी को मेजर कर सकते हो। एक होते हैं बेटा रिलेटिव पुअर, रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है बेटा, पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी को मेजर करना, और खाली इंडिया नहीं बेटा, हर देश कैसे मेजर करता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ही मेजर करता है, यानी कि पॉवर्टी लाइन का यूज करता है।
पॉवर्टी लाइन क्या है बेटा? एक कट ऑफ पॉइंट बता देती है। अगर आप इस कट ऑफ पॉइंट के नीचे रह गए तो आप बेटा क्या हो? पुअर हो, अदरवाइज आप नॉन पुअर हो। और इंडिया में ये बेटा 816 या 1000 रुपए है, या बोल सकते हो 2100 या 2400 कैलोरी है। समझ आई बात? तो बेटा रिलेटिव पुअर क्या होता है? अनपढ़ों का तरीका पॉवर्टी मेजर करने का रिलेटिव पुअर। रिलेटिव पुअर में हम क्या करते हैं बेटा? कंपैरिजन करते हैं टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन, डिफरेंट रीजन्स एंड द डिफरेंट कंट्रीज। आप भी तो बोल देते हो अपने दोस्त को, अरे बड़ा अमीर आदमी है तू, तो बड़ा आदमी हो गया तू तो, ठीक है ना बेटा? देखो बाबू, हम क्या करते हैं, अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे से ऊंचा लगता है, हम उसको रिच बताने लगते हैं या नॉन पुअर बताने लगते हैं, और खुद को बेटा उसके कंपैरिजन में पुअर मानते हैं। ये अनपढ़ों का तरीका होता है पॉवर्टी बताने का। जब आप दो रीजन को कंपेयर करके बोलने लगते हो ना बेटा, बिना किसी स्टैट के आप बोलने लगते हो, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आप उसको नॉन पुअर बोल देते हो, सामने वाले को पुअर बोल देते हो। मैं बोलूं कंपैरिजन कर लो चंडीगढ़ वर्सेस सहारनपुर, समझ आ गया होगा? हाँ, बात ही नहीं है कोई, ठीक है ना? कंपैरिजन कर लो यूपी वर्सेस महाराष्ट्र, मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, समझ आ गया होगा? मैं बात करूं अमेरिका वर्सेस इंडिया, बिना किसी स्टैट के सिर्फ आपने क्या करा? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर कर, ठीक है ना? आपके पास कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है, कोई स्टैट नहीं है। अगर बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे कंपैरिजन करके पता कराना हो तो वो बेटा रिलेटिव पॉवर्टी होती है। नाम है रिलेटिव, दो चीजों का बेटा कंपैरिजन से पता करा। समझ आई बात? चलो जी फटाफट से लिखना बेटा इंट्रो। चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेटा फर्स्ट बुलेट में लिखना पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी, पॉवर्टी is the inability to fulfill the minimum requirement of life, to fulfill the minimum requirement of life, like food, shelter, clothing, food, shelter, clothing, education and medical facility, education and medical facility, बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखना टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। बेटा सबसे पहली हेडिंग लिखो रिलेटिव पॉवर्टी, सबसे पहली हेडिंग रिलेटिव पॉवर्टी। फर्स्ट बुलेट लिखना रिलेटिव पॉवर्टी इज विदिन different class of person, regions or country second bullet लिखना if a country or class of person, if a country or class of person having low level of living is treated as poor, as compared to the country or class of person, as compared to the country or class of person having high level of living, having high level of living। सेकेंड हेडिंग लिखना बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
लिखना बेटा इसमें फर्स्ट बुलेट, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ poverty line is used. The concept of poverty line is used to measure absolute poor. To measure absolute poor. Full stop. Next bullet लिखना. Poverty line refers to the cutoff point. Poverty line refers to the cutoff point, CUTOFF, refers to the cutoff point that divide the population into poor and non-poor. इसके बाद लिखना बेटा थर्ड बुलेट, इन द अर्बन एरियाज if you spend below 1,000 per month, below 1,000 per month, and in the rural areas if you spend below 816 per month, then you are treated as poor. In the rural areas, if you spend below 816 per month, then you are treated as poor. Full stop. बेटा एक छोटी सी हेडिंग लिखना, फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म. फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म. फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स. बेटा लिखना रूरल एरिया हाइफन करके लिखना 2400 कैलोरीज, फिर अर्बन एरियाज हाइफन करके लिख लेना 2100 कैलोरीज. इंडिया में कैलोरी नॉर्म भी फिक्स है. रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरीज और अर्बन के लिए 2100 कैलोरीज. बेटा हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ पुअर. टाइप्स ऑफ पुअर. बस आप ये 5 डायग्राम बना लो, लिखवा इनके बारे में कल दूंगा, ठीक है. और हॉरिजॉन्टली बना लेना, सच बता रहा हूं बेटा, वर्टिकली पूरे नहीं आने, 5 इकट्ठे बनाने. हॉरिजॉन्टली बना लेना, ठीक है. पूरा पेज कवर हो जाएगा. हॉरिजॉन्टली बना लेना. अगर आपको लगता है अपने स्केल से बनाना है, नोट सुधारने हैं, तो घर जाके बना लेना, ठीक है. अभी बहुत सारा लिखवाने वाला रह गया है, मैं ये बता रहा हूँ. इस पैराग्राफ में मुझे बहुत सारा लिखवाना है, तो आप डायग्राम बना लो. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाय बाय.